So today we will be completing or covering last two topics of our first unit. Okay. So the last two topics, number 10 and number 11. Number 10 is mechanisms of heredity. Mechanisms of heredity. 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 Pronunciation का difference लिख लो. Mechanisms of heredity. Correct. Heredity. क्या है उसका? हेरिडी क्या? TTY. वो हेरिडिटरी भी बोलते हैं उसको एक बार कभी कभी. HEREDITY. आवाज में कुछ लिखना पड़ता फिर. Heredity refers to the transmission. Heredity refers to the transmission of physical and psychological traits. Physical and psychological traits. Physical and psychological traits from parents to their children. Physical and psychological traits from parents to their children. कभी कभी. तो इसका मतलब ये है जीन्स से भी होता. हम बोलते ना कि भाई फिजिकल अपीयरेंस, अरे फादर की इनका फेस कट फादर का है, इनके आईज जो है मदर के है, बोलते ना. क्यों आता है वो? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, जीन्स ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. ठीक है. और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते. फादर के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है वो चिल्ड्रन पर भी होते. ठीक है. चलिए. These traits are passed through traits. TRAITS. These traits are passed through biological structures. Are passed through biological structures known as chromosomes and genes. Genes बोलते ना, जीन्स पैंट नहीं, जीन्स. करेक्ट. जे से नहीं, जी से. ओके. Chromosomes are thread-like structures. Yes, chromosomes are thread-like structures found in the cells of the body. Chromosomes are thread-like structures. Chromosomes are thread-like structures found in the cells of the body. ठीक है. Found in the cells of the body. Correct. Everything. Yes. Body. And they carry genetic information. Found in the cells of the body. And they carry genetic information from one generation to the next. Genetic information from one generation to the next. ठीक है. पेरेंट से चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रांसमिट होते. कभी कभी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, समझे, कभी आई कलर ग्रैंडमदर का आता, कभी ग्रैंडमदर का आता, कभी फेस कट वैसा रहता, कभी नेचर रहता, कभी मूड. ये सब चीज़ें कहाँ से आते? स्किन कलर, डायबिटीज, बीमारियां भी आते हैं. बीमारियां भी आते. तो वो पूरे जो है जीन्स एंड फादर्स एंड फोर फादर्स से रहते हो. ठीक है. ह्यूमंस नॉर्मली हैव 46 chromosomes. Humans normally have 46 chromosomes
arranged in 23 pairs. Humans normally have 46 chromosomes arranged in 23 pairs. ठीक है? Genes are smaller units. Genes are smaller units located on chromosomes. Genes are smaller units located on chromosomes. On chromosomes. ठीक है? They contain specific structures. They contain specific instructions. They contain specific instructions that determine instructions that determine inherited characteristics such as eye color, hair type, height, hair type बालों की किस्में रहती ना, कभी स्मूथ रहते, कभी और क्या रहते, उसको क्या बोलते हैं, कर्ली रहते, कभी रफ बाल रहते, तो कब से पेरेंट्स से आते हो, तो बता रहा ना, वही है ये मेन ट्रांसमिट होते सो यही है। आई कलर भी आता, हेयर टाइप भी आता, स्किन टोन भी आता, ठीक है, यस हेयर टाइप, height and certain aspects of personality, height and certain aspects of personality. कभी कपल्स लंबे रहते हैं, उनके बच्चे भी तो लंबे रहते हैं। हमारे एक है इसी खानदान में, अब सुलेमान है ना, उनसे उम्र में छोटे, तो सुलेमान उनको इधर लगते, वो दूसरा बच्चा वो सुलेमान के बाद पैदा तो इधर है, उनके फादर मदर वो लंबे इतने बड़े, तो ऐसा। तो कभी एज में छोटे भी रहते, हाइट के हिसाब से, तो वो जीन्स की तरफ से आता, ठीक है। कौन अम्मी की तरफ से रहता हो, हाँ, तो फिर देखना आप क्या है। थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। अगर सचिन तेंदुलकर का बच्चा है, देखो सचिन क्रिकेटर इतने है, उनका बच्चा इतना लंबा है, तो कभी कभी वैसे भी होता, ठीक है। हाँ डेवलप थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, through the combination of genes from both the parents, children inherit many characteristics. इच्छा छोड़ो उनका, क्लास में तो भी तुम लिख रहे हो नो नेचुरल इच्छा, तो लिख लो, अपना अपना करो। Through the combination of genes from both parents, children inherit many characteristics. चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करते, ठीक है। that influence their physical and psychological development. Their characteristics that influence their physical and psychological development. फिजिकल डेवलपमेंट भी इनहेरिट करते और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इनहेरिट करते। कभी कभी हमारे घरों में सुने होंगे, अरे यानी अब्बा के जैसा गुस्से वाला है, बोलते अरे बाबा के जैसा गुस्से वाला है, अरे बच्ची जो है अम्मा के जैसा चिढ़ जा रही है, ऐसा बोलते ना, तो ये रहता हो। हाँ जिद्दी है, तो अरे अम्मा कैसी जिद्दी है बच्ची, वो सी भी नहीं है, मेरे बहुत खराब आदत है। चलो ठीक है, तो समझे ना। तो ऑल चिल्ड्रन दे यूजुअली डेवलप एंड टेक एंड इनहेरिट जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। कभी बोलते हैं दादी के जैसे दिख रहे, नानी के जैसे दिख रहे, ये वही रहता पूरा, जीन्स इनहेरिट करते, ठीक है। 11th टॉपिक, 10th हो गया, 11th टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट। नहीं निकल, सुनो मेरी बात, उधर फैन के नीचे बैठ जाओ, बिकॉज मेरे को फिर चीखना पड़ता, हैज खराब करने का। चलिए 11th टॉपिक, इन्फ्लुएंस
influence of heredity and environment on behavior, and environment on behavior के ऊपर एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस कैसे होता, ठीक है। एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता, ठीक है, वो उसके बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय both heredity and environment. Heredity and environment, HEREDITY, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड करता, हमारे हेरिडिटी से, और एनवायरनमेंट कैसा वैसा बिहेवियर रहता हमारा, ठीक है। घर में अलग रहता, कॉलेज में अलग, दोस्तों के साथ अलग, पेरेंट्स के साथ अलग, सिबलिंग्स के साथ अलग अलग बिहेवियर रहता, ठीक है। तो एनवायरनमेंट डिसाइड करता आपका बिहेवियर, अंडरस्टूड, ठीक है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बायोलॉजिकल फाउंडेशन, or potential the biological foundation provides the biological foundation or potential that a person inherits from parents. Inherit मतलब आई वाह, शाबाश। इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तुमला क्या अपनी अलग मीटिंग कर लेके आए, आधी टॉपिक हो गई ना जब से, नहीं वो ड्रंकार्ड इज द एक्सटर्नल एक्टिविटी। देखो आदत और फितरत में फर्क रहता, वी आर टॉकिंग अबाउट फितरत वो इंटरनल रहता, आदत हम बाहर से अडॉप्ट करते, इन्फ्लुएंस हो सकते कि भाई उन्होंने घर में कर रहे तो मैं भी कर लूं, क्या कुछ भी नहीं होता, दैट इज इन्फ्लुएंस। बट फितरत इज समथिंग डिफरेंट, वो नहीं बदलती, कभी नहीं होती, आदत आप बदल सकते, खानदान नहीं रहता, ठीक है। हो गया, क्या लिखे, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बायोलॉजिकल फाउंडेशन और पोटेंशियल दैट ए पर्सन इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स, हो गया। दिस इंक्लूड्स जेनेटिक ट्राइट्स, traits, TRAITS, okay, traits such as intelligence, temperament and physical characteristics, temperament and physical characteristics, ठीक है। ये सब चीजें जेनेटिक से इनहेरिट करते किड्स, चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। However, the environment in which a person grows and develops, also plays a crucial role in shaping behavior. अभी आप पूछे ना, वही सवाल है ये, रोल इन शेपिंग बिहेवियर। अभी आप पूछे ना, वही बात है ये कि एनवायरनमेंट भी इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग बिहेवियर, ठीक है। जेनेटिक से एक आ रहा, मगर उसका एनवायरनमेंट अलग है, बिहेवियर अलग है, तो ही विल डेवलप डिफरेंट हैबिट्स, अंडरस्टूड। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो फादर करे बच्चा करना, हाँ वैसा रहता, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या रहता, तुमने क्या वही बता, वही लिखा रहा हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड फैमिली अपब्रिंगिंग,
एजुकेशन, कल्चर। जब से तुम एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड फैमिली अपब्रिंगिंग। अरे घर में तालीम तरबियत दिए सो वही पे एजुकेशन, फैमिली अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, कल्चर, सोशल रिलेशनशिप्स। छोड़ दो पीछा, सोशल रिलेशनशिप लिखते जाओ एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस लिखते जाओ। लाइफ, जिंदगी के तजुर्बे। उर्दू में शुरू कर दूंगा ना तो मैं। फैमिली एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड हमारे अतराफ और अकनाफ की तरबियतें हासिल करने के लिए घर की तरबियत, तालीम, सोहबत, मुआशरे के ताल्लुकात और जिंदगी के तजुर्बे। हंस रहे हैं क्या पूरा लाइफ जिंदगी के तजुर्बे, मुआशरी ताल्लुकात लिखते जाओ। मुआशरे के ताल्लुकात, घरेलू, हाँ, माँ बाप की तरबियत, तालीम। देखो चलिए लाइफ एक्सपीरियंसेस लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल, a person may inherit a natural ability for intelligence. A person may inherit a natural ability for intelligence. A person may inherit a natural ability for intelligence, but without proper education for intelligence, ability for intelligence, natural ability for intelligence, but without proper education and supportive environment, that potential may not fully develop. Environment that potential may not fully develop. ठीक है, अब इसमें कैसा है, इंटेलिजेंस जो है ना पेरेंट्स से इनहेरिट करते, बट वो इंटेलिजेंस, हाँ, पोटेंशियल में नॉट फुल्ली डेवलप, पेरेंट्स से इंटेलिजेंस इनहेरिट करे, बट अगर वो इनहेरिट करने के बाद एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिला तो वो इंटेलिजेंस डेवलप भी नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस डेवलप करने के वास्ते एजुकेशन होना, अच्छे दोस्त होना, अच्छी सोहबत होना, हाँ, अच्छा एनवायरनमेंट होना। अगर चोर डाकू बन गया तो इंटेलिजेंस उन्हें चोरी में लगाता तो बैड इंटेलिजेंस हो गया, वो सोसाइटी को खराब करने में इंटेलिजेंस लगाता। तो अच्छा इंटेलिजेंस, प्रॉफिटेबल इंटेलिजेंस है तो उसका एनवायरनमेंट भी एडुकेटेड रहना। ठीक है, सिमिलरली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, दो जगह चल रहा दिमाग, आगे और पीछे। सिमिलरली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, नहीं लिख रहे तो ऐसा चुप लिखने की तो भी एक्टिंग करना, ऐसा पेना यूं करना, पीछे बोल रहा हूं मैं, ऐसा एग्जाम अभी नहीं लिखते। Similarly, environmental influences, हाँ तो हो गया ना, फिर जब से मैं बोल रहा हूँ तो पीछे कहीं को है, जल्दी आगे बढ़ो। हाँ, such as poverty, family conflict, or exposure to crime, can affect behavior and decision making. ठीक है,
affect A से affect behavior and decision making. अपने एनवायरनमेंट जो इन्फ्लुएंस करता कि भाई अच्छे आप कंपनी में रहे तो आप कुछ अच्छा डेवलप कर सकते, प्रोफेशन अच्छा रहे तो अच्छा, नहीं तो पावर्टी है तो पावर्टी, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स या क्रिमिनल बिहेवियर, जो एनवायरनमेंट में रहे वही डेवलपमेंट होता, याद रख लो, ठीक है। बुरी सोहबत में रहे तो बुरा डेवलपमेंट है, अच्छी कंपनी में रहे तो वो बहुत रेयर केसेस है, मगर अपन वो तजुर्बा नहीं कर सकते ना, मैं वो करोड़ों में से मैं एक हूँ तो नहीं बोल सकते हो, तो अपन बस अपन अच्छी कंपनी में रहना अपना काम है वो, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, therefore psychologists generally agree that human behavior therefore psychologists generally agree that human behavior results from the interaction between heredity and environment. ठीक है, लास्ट लाइन, both factors work together, heredity and environment, ये दो फैक्टर्स की बात चल रही, ठीक है। both factors work together in shaping personality, abilities and pattern of behavior, shaping personality, abilities and pattern of behavior, ठीक है। तो heredity and environment, it affects on your body, on your behavior, on your physical development, on your mental development and your psychological development, इतने डेवलपमेंट पे जीन्स भी अफेक्ट करते एंड एनवायरनमेंट भी आपके ऊपर अफेक्ट करता है, ये हमको मालूम रहना है। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिट of our subject, ठीक है। 11 topics, we have completed the 11 topics and probably Monday we will start the second unit, okay। तो Tuesday is, tomorrow is holiday, Saturday is holiday, Sunday is holiday and Tuesday is also holiday, Tuesday Ambedkar Jayanti, something like that। नहीं Monday I will start, क्योंकि I have to complete the units, ऐसा नहीं होता। Monday I will come, I will start the second unit। Why? Because इंटरनल्स 2 यूनिट्स के एटलीस्ट कुछ तो 20% तो कवर करना ना।